ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اب لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ مقدمات کا اندراج اور بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پوائنٹس بھی کاٹے جائیں گے۔ 20 پوائنٹس ہونے پر لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ 24 خلاف ورزیوں پر 2 سے لے کر 6 پوائنٹس کاٹے جائیں گے۔ 5 ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا۔ 24 مختلف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 500 سے 5000 تک جرمانے ہوں گے۔ اب 1500 سی سی سے اوپر کی گاڑی کو اوور سپیڈنگ پر جرمانہ 10 گنا زیادہ ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کے جرمانوں پر 5 گنا اضافہ ہو گیا۔ 1500 سی سی سے کم گاڑیوں کے جرمانے کو ڈبل کیا جائے گا۔ علی صاحب سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں، بتائیے گا علی صاحب۔ اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سوچ سمجھ کر کیجیے گا، چونکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے انتہائی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹریفک کی روانی پر قابو پانے کے لیے، حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کی جانب سے جو 3 اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس کی سمری بھی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے جو جرمانے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر کیے جائیں اور گاڑیوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو بائیکرز اور 1500 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان پر جرمانے ڈبل کیے جائیں گے، اور اسی طرح اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو اس پر 5 گنا جرمانے بڑھائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح لگژری وہیکلز یعنی 1500 سی سی سے اوپر جو گاڑیاں ہوں گی ان کے جرمانے 10 گنا بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب 500 سے لے کر جرمانہ جو ہے وہ 10,000 تک کیا جائے گا۔ 24 مختلف وائلیشنز ہیں جن کو سامنے رکھا گیا ہے، اس پر پوائنٹس کی بھی ڈیڈکشن ہوگی، اور کم از کم 2 سے لے کر 6 پوائنٹس رکھے گئے ہیں، جس میں 20 پوائنٹس ہوتے ہی ڈرائیور کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وائلیشنز پر مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ بہت عرصے سے ان چیزوں پر کو زیر غور لایا جا رہا تھا، اب ان کو سمرائز کر کے آئی جی پنجاب کی منظوری کے بعد حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی اپروول ہوگی اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور پوائنٹ سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانوں میں اضافے پر عمل درآمد شروع کروا دیا جائے گا۔ شاہی بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کے بعد دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ سی ٹی او اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروانے کا حکم جاری کیا گیا۔ ہائی کورٹ کا ایل ڈی اے کو سکولز ٹرانسپورٹ بارے تفصیلی پلان جمع کروانے کا بھی حکم۔ ایل ڈی اے کو گرین بلڈنگز کو ٹیکس سے چھوٹ دینے کے لیے پالیسی بنانے کا بھی حکم جاری۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے ساتھ ملک اشرف ہیں۔ جی ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ ہائی کورٹ نے رمضان المبارک کے بعد دھواں دینے والی موٹر سائیکلوں کو وارننگ دے کر بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور دھواں دینے والی گاڑیوں کو ان کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے محکمہ ٹرانسپورٹ اور سی ٹی او سے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے سمو تدارک کیس میں ایل ڈی اے کو سکولز کی ٹریفک کے حوالے سے تفصیلی پلان بھی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ایل ڈی اے کو گرین بلڈنگز کے حوالے سے ٹیکس میں چھوٹ دینے کے حوالے سے بھی پالیسی بنانے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے سکولز کو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد پارکنگ ایریاز بنانے کا بھی حکم دیا ہے، اور عدالت نے واسا کو واٹر میٹرنگ کی تنصیب جلد سے جلد مکمل کرنے کا بھی کہا ہے، اور عدالت نے ڈائریکٹر پی ڈی ایم ملک حمید اللہ کو ذاتی حیثیت میں پودے لگانے کی رائے دینے پر اظہار ناراضگی کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں جو تمام متعلقہ افسران کے جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور عدالت کو ڈپٹی جو ماحولیاتی ممبر ہیں کمیشن کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ واسا جو ہے وہ 2025 اور 26 کے لیے 2 لاکھ واسا جو میٹر ہیں پانی کے وہ خریدنے جا رہا ہے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس یہ کہ یہ واٹر میٹرز جلد از جلد ان کی تصنیف جو ہے مکمل کر کے پانی کو ضیاع کو روکنا ہوگا۔ اور مزید عدالت میں ایل ڈی کے وکیل نے شہر میں ٹریفک جام کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی، اور استدعا کی کہ اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ متعلقہ جو فنانس پی این ڈی ہے اس کو فنڈ جاری کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد تک طویل کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔
स्कूलों को आउटसोर्स करने का दूसरा फेज 4789 मजीद सरकारी स्कूल ठेके पर दे दिए गए हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। फेज 2 में ज़्यादातर स्कूल इनफरादी शख्स या तालीम याफ्ता नौजवानों को दिए गए हैं। फेज 2 में इदारों और NGOs के हवाले 45% स्कूल किए गए हैं। स्क्रूटनी में ताखिर के बाइस फहरिस्तें 1 माह ताखिर से जारी की गई। जुनेद रियाज से तफसीलात हासिल कर लेते हैं, बताइएगा जुनेद। लाहौर समेत पंजाब भर के 4789 स्कूल जो हैं वो निजी शोबे के हवाले जो हैं वो कर दिए गए हैं और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो इनफरादी शख्सियात या तालीम याफ्ता जो है नौजवान हैं उनको दिए गए हैं। इससे कबल 5800 के करीब जो स्कूल फेज़ 1 में दिए गए थे उसमें ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो NGOs और अदारों के हवाले किए गए थे, लेकिन ये दूसरा फेज़ है और दूसरे फेज़ में भी 4700 से ज़ायद सरकारी स्कूल जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं और इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फहरिस्त भी जो है वो जारी कर दी है। इस हवाले से एतराज़ात भी मांग लिए गए हैं उन लोगों से जिनको ये स्कूल नहीं मिल सके और उन्हें कहा गया कि वो 4 अप्रैल तक जो है अपने एतराज़ात जो हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को जमा करवाएं। इस हवाले से पैफ हुकाम का कहना है कि 4 अप्रैल के बाद किसी के भी एतराज़ात वसूल नहीं किए जाएंगे। और अगर लाहौर की बात की जाए तो अभी तक लाहौर में आउटसोर्स किए जाने वाले स्कूलों की तादाद 50 से भी ज़ायद हो चुकी है। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ACR को ऑनलाइन कर दिया। ACR अब पेपर की सूरत में नहीं होगी। अफसरान और मुलाजमीन की ACR अब ऑनलाइन लिखी जाएगी। ACR ऑनलाइन करके पेपरलेस टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमें इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जहां दफ्तर ज़मान ने जो ACR है वो ऑनलाइन कर दी है। अब तमाम अफसरान और मुलाजमिन की ACR जो है वो ऑनलाइन लिखी जाएगी। उनके रिपोर्टिंग अफसर लिखेंगे और फिर काउंटर साइनिंग अफसर जो है ना काउंटर साइन करेंगे, लेकिन ये ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर होगी, E-Force पर लिखी जाएगी। कोई पेपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, पेपरलेस टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल की जाएगी और इस वाले से ये इकदाम फैसला किया गया है और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। अब आपको बताएं, वासा को नए 4x4 डाले खरीदने की बड़ी मंजूरी मिल गई है। वासा वजीर आला के तरजीही मंसूबे लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से नई गाड़ियां खरीदेगा। वासा 7 करोड़ 80 लाख मालियत से 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदेगा। फंड्स निकालने कबल अज़ वक्त गाड़ियां खरीदने की हुकूमत पंजाब से मंजूरी मिल गई है। वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से गाड़ियों के फंड्स चार्ज करने की इजाज़त मांगी थी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब ने वासा को मंजूरी देने का बाकायदा मरासला जारी कर दिया। दुरे नयाब से तफसीलात हासिल कर लेते हैं, बताइएगा दुरे नयाब। जी बिल्कुल, वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से बड़े पैमाने पे गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से जो समरी भेजी गई थी उस पे हुकूमत पंजाब ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के फ़ंड से इसको चार्ज किया जाएगा और 12 जो है वो सिंगल कैबिन डाले ख़रीदे जाएंगे हैवी ड्यूटी 4x4 और इसके लिए जो समरी इनिशिएट की गई थी उसके बाद अब सेक्रेटरी हाउसिंग ने बाकायदा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वासा को इजाज़त दे दी है कि जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के 29 अरब रुपए का जो शेयर है इस रवां माली साल में वासा के पास, उसमें से ये चार्ज करे और इस पे जो एक्सपेंडिचर्स की इजाज़त दी गई है इनकी जो लागत है वो तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख से ज़ायद होगी। और इस हवाले से मरासले में ये भी इजाज़त दे दी गई है कि जहाँ से भी इन्होंने परचेज़ करना है उनको ये रकम अकाउंट से निकाल के इस पैकेज के वहाँ पे ट्रांसफ़र की जा सकती है ताकि प्री बुकिंग ऑर्डर दिया जा सके गाड़ियों का। वासा ये गाड़ियाँ लेके जो है वो अपने अफसरान को देगा और उसके ज़रिए जो है दावा किया जा रहा है कि परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इससे पहले भी वासा मुख्तलिफ मराहिल में नई गाड़ियाँ ले चुका है। सिंगल कैबिन डाले, डबल कैबिन डाले, इसके साथ साथ मुख्तलिफ छोटी नोयत की गाड़ियाँ जिसमें यारिस, स्विफ्ट दीगर शामिल हैं वो भी वासा ले चुका है और अभी हाल ही में 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ डबल कैबिन लिए गए हैं जिसमें वाइस चेयरमैन को भी दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर बनाने का मामला। रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की तामीर का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। हमारे साथ कलीम अख्तर हैं, तफसीलात बताएंगे। जी कलीम।
बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से नया पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर तमीर करने का फैसला किया गया था। इसके पेश नज़र अब बाकायदा तौर पर इस मंसूबे को सालाना तरक्याती जो प्रोग्राम है उसमें शामिल कर लिया गया है और 2 अरब रुपए की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो भी मंजूर कर ली गई है। इस वजह से बताया गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो नया हेडक्वार्टर बनाया जाएगा उसके अंदर न सिर्फ कमिश्नरेट बल्कि जो अपील कमिश्नरेट का ऑफिस है वो एक ही छत तले होगा और तमाम तर जो सहूलियात हैं टैक्स दहिंदगान को वो एक ही जगह पर मिल सकेंगी, जबकि इसके अलावा जो स्टाफ और दीगर जो साइलीन हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता था, उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने के सिलसिला में ये फैसला किया गया है। जबकि इस हवाले से अगर आपको मज़ीद बताएं तो 4 अरब 41 करोड़ 90 लाख रुपए की जो लागत है वो इस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो नया हेडक्वार्टर है इस पर आएगी और इसमें से जो तकरीबन 3 अरब 62 करोड़ 20 लाख रुपए है ये खर्च होंगे, जबकि इसी के साथ साथ 19 करोड़ 48 लाख रुपए का जो फर्नीचर है वो बाकायदा तौर पर इस नए हेडक्वार्टर के लिए ख़रीदा जाएगा। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर नया बनाया जाएगा उसको मुकम्मल करने के हवाले से जो टारगेट है वो दे दिया गया है और बाकायदा तौर पर जून 2027 तक इसको हर सूरत में मुकम्मल करके ऑपरेशनल करने के हवाले से भी जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। माही सयाम का आखिरी अशरा फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं। गिरा फरोश बेलगाम इंतजामिया काबू पाने में नाकाम है। अशिया ख़ुरनोश की मनमानी कीमतों के बायस शहरी परेशान नजर आते हैं। अफशान रिजवान हमारे साथ हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगी। जी अफशान। हैं कि माह सियाम का आखिरी अशरा शुरू हो गया, लेकिन दौरान फरोशी जो है मुनाफाखोरी जो है वो अपने अरूज पे है। इस पूरे अशरे में भी रहमतों और बरकतों वाला ये महीना था, लेकिन इस महीने में भी जो है दुकानदारों की जान से मनमानी कीमतों पे फल और सब्जियां फरोख्त की गई। अगर आपको किलो के हिसाब से फल और सब्जी की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में क्या किस कीमत पे फरोख्त किया जा रहा है उसके अगले हवाले से आगाह किया जाए तो सबसे पहले बात करेंगे फलों की, जिसका रमज़ान में सब ही इस्तेमाल करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके दस्तरखान पे फल जो है मौजूद हों, क्योंकि रोज़ी की हालत में एनर्जी कम होती है तो फल से वो एनर्जी वापस आती है। सब चाहते हैं कि फल खरीदें, लेकिन उसकी कीमतें इतनी बढ़ा दी जाती हैं कि शहरी बेचारे उसे लेने से कासिर हो जाते हैं। केले की बात कर ली जाए तो 270 इसकी मुकर्रर की गई है सरकार की जानिब से, लेकिन ये 300 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 220 है, लेकिन ये 300। पपीते की सरकारी कीमत 240 है, लेकिन ये भी 350 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। खजूर की कीमत भी 470 है, लेकिन ये 500 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। स्ट्रॉबेरी की कीमत वैसे तो सरकार की जानिब से अभी नहीं दी गई, लेकिन बाजार में इसको जो है 100 रुपये तक बेचने का कहा गया है, लेकिन फिर भी इसको 170 में ही बेचा जा रहा है। इसी तरह फल सब्जियों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो आलू की सरकार की जानिब से कीमत 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये बाजार में 90 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 55 है, लेकिन ये 100, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत भी 55 है, लेकिन ये 110 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 360 है, लेकिन ये 400। लहसुन की सरकारी कीमत 600 है, लेकिन ये 650 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मटर की सरकारी कीमत 100 है, लेकिन ये 150 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 110 है, लेकिन ये 140, जबकि लीमू जिसका इस्तेमाल अब मौसम गर्मा में बेतहाशा होने वाला है और पिछले साल तो मौसम गर्मा में लीमू दस्तियाब ही नहीं था, सिर्फ लीमू चाइना दस्तियाब था और उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा थी, 1000 रुपये किलो तक थी कि लोग उसको ख़रीदते नहीं थे और शहरी जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानों पे रखना भी छोड़ दिया था। इस वक्त जो है लीमू अक्सर दुकानों पे दिख रहा है लीमू चाइना, लेकिन उसकी कीमत 110 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार में 170 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। ये मनमानी कीमतें जो है साल ही चलती हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में क्योंकि अशय खुर्दनोश की चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लोग कसरत से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कीमतों में भी उसी तरह से कमी आए। लेकिन की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जिनका काम है इन कीमतों को जो है कम करना और इन पर जो है इस्तिला करवाना, सरकारी कीमतों के मुताबिक सब्जियों और फलों को फरोख्त करवाना, वो यहाँ पे जो है हमें नहीं दिखाई देता और शहरी इस सवाल से खासा पढ़ाते हैं और वो जो है सरकारी। बहुत शुक्रिया अफशान रिजवान हमारे साथ मौजूद थी।